ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ ਐਨਟੀਟੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਮੋਸਟ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਗੇਨਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਟੇਜਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ 6 ਜਾਂ 7 ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਚਾਈਲਡ 0 to 6 ਈਅਰ, 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਫੀਲਡ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਕੋਗਨੈਟਿਵ, ਇਮੋਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡੋਮੇਨਸ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਸਕੇ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵਾਧਾ, ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਵਿਕਾਸ। ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਵਾਧਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਾਂਗੇ? ਵਾਧਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ, ਭਾਰ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਸ, 2 ਹੀ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਫੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਇਹ 2 ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਜਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ 6 ਜਾਂ 7। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ 'ਚ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਂਗੀ, ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 2 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦਾ ਕਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਜਸ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ, ਰਿੜਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਰਿੜਦਾ, ਭੱਜਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਇਨਫੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਗਨੈਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ? ਵਿਦ ਸੈਂਸਿਸ ਐਂਡ
मोटर एक्टिविटीज़। ठीक है, की हुंदियां पंजाबी च गल करिए सेंसिस की हैगा ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां किन्नियां ने 5। ठीक है, अखां मतलब बच्चा देख के सीखदा, नक बच्चा सूंघ के सीख सकदा। ठीक है, मतलब स्मैल करके सीख सकदा। स्किन मतलब बच्चा टच करके किसी चीज़ नूं छो के सीख सकदा। जीभ टेस्ट करके सीख सकदा, स्वाद चख के कि किवें उहदे राही भी बच्चा सीखूगा। जां असीं गल करिए ਕੰਨ ਹੀਅਰ करके। ठीक है, सुन के। तो इन्हां चीज़ों के राही खास करके 2 चीज़ों के राही बच्चा ज़्यादातर सीखता, देख के सुन के। ठीक है, इन्हां सारिया चीज़ों के रही भी अपने कोगनैटिव सोशल हर तरह की डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चा करता किहदे राही ज्ञान इंद्रियां दे राही। दूजा मोटर एक्टिविटीज़। मोटर एक्टिविटीज़ का की मतलब आ गत्यात्मक ਕਿਰਿਆਵਾਂ। असल दे विच जिहड़ी मोटर एक्टिविटी हैगी वो साडे सरीरक विकास का ही हिस्सा। गति तो नाम तो क्लीयर आ, मोटर के नाम तो तुहानूं क्लीयर होगा कि जिहड़ियां साडियां हत्थ पैर बाहां उंगलां ये मूव कर रही हैं, असीं तुर रहे हैं, लत्तां मूव कर रही हैं, बांह मूव कर रही है, तो ये सारियां चीज़ां की है गत्यात्मक। जो साडे शरीर दियां मांसपेशियां अंग मूव करते हैं तो उन्होंने असीं की आखदे हैगे आ गत्यात्मक। तो हुण तुसीं देखो इत्थे की मतलब आ, बच्चा खेड के है ना भज के तुर फिर के रिड़ के जां हत्थां कोई चीज़ फड़ के टच करके, तो यदा मतलब की है ये गत्यात्मक एक्टिविटीज़ का मतलब की हैगा तुरना रिड़ना भजना। इन्हां एक्टिविटीज़ के राही जिवें जिवें वो एक्टिविटीज़ सीखता जाऊगा एक तो बाद एक उहदे राही अपनियां मूवमेंट के राही हैगा जिहड़ा बच्चा लर्न करदा। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ कि इन्फेंसी पीरियड दे विच बच्चा किस तरीके दे नाल लर्न करदा। तो सेंसिस एंड मोटर एक्टिविटी सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट स्टेज दे विच बच्चा इन्फेंसी पीरियड दे विच बच्चा किहड़े तरीके नाल लर्न करूगा, तो ज्ञान इंद्रियां दे राही ते गत्यात्मक क्रियावां दे राही। इस इन्हां तरीकिਆਂ नाल सिखदा। इस करके प्याजे ने आ जिहड़ा, ठीक है, प्याजे ने एक थ्योरी दिती सी कोगनैटिव डेवलपमेंट की, उन्होंने असीं कोगनैटिव डेवलपमेंट दे विच पढ़ांगे, थ्योरी ऑफ कोगनैटिव डेवलपमेंट। उहदे विच उहने इस स्टेज नूं की आख्या सेंसरी एंड मोटर स्टेज। ठीक है, उहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा बच्चा हैगा उहदी बर्थ तो लैके 2 साल का समा की हैगा सेंसरी मोटर स्टेज। प्याजे ने टोटल 4 स्टेजां दसियां, उहदे विचों तुहाडी 0 तो 6 साल तक असीं प्याजे दीयां 2 स्टेजां नूं पढ़ांगे ते उहदी जिहड़ी पहली स्टेज हैगी आ वो आही आ। ठीक है जी, जिहदे विच बच्चा किहड़े तरीके नाल लर्न करदा सेंसरी ते मोटर एक्टिविटीज़ दे राही। इसे करके असीं इहनूं सेंसरी ते मोटर स्टेज आखदे हां। इस स्टेज दे विच जिहड़ा बच्चा हैगा उहदे च एक खास लक्षण आउंदा, वो की हैगा ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरां दे विच पुछया जा चुकिया, जिहड़े कि एजुकेशन फील्ड दे विच हुंदे ने। वस्तु स्थाईपन की आ। ठीक है, क्वेश्चन सीधा ये हुंदा कि वस्तु स्थाईपन बच्चे दे विच किहड़ी स्टेज दे विच आउंदा, इन्फेंसी। क्वेश्चन दूजा ये भी हो सकता कि ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थाईपन प्याजे की किहड़ी स्टेज दे विच आउंदा, फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है जी, की ऑब्जेक्ट परमानेंस देखो अप्रॉक्स ना ये 18 मंथ तो बाद बच्चे दे विच विकसित हुंदा। ठीक है, 18 मंथ तो बाद। उहदा की रीजन आ कि ऑब्जेक्ट परमानेंस नूं डिफाइन करिए ना तो क्लीयर आ, वस्तु कोई वस्तु आ ते स्थाई आ, किते गायब नहीं हो सकती। जे तुसी साल तो पहला एक बच्चे दे विच देखिए ना, जिवें आपां कई छोटा जिहा बच्चा वो फोन नूं देखदा है ना, चाहुंदा कि फोन उहनूं मिले, पर आपां फोन लुकोता ते आपां उहनूं ये कहता कि फोन तां है ही नहीं, उहनूं कोको लै गई। असीं कॉमन टर्म यूज़ करते हैं कोको लै गई, है ना। तो जो असीं उहनूं कह दिंदे आ कि कोई चीज़ गायब हो गई, कोको लै गई, तो 1 साल तो पहला बच्चा ये मनदा कि हाँ वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं सी करदी। पर ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਕੋ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ
खास लक्षण आ जाऊगा ऑब्जेक्ट परमानेंस के जिहड़ी चीज एक बारी देख ली आ उन्हें वो गायब नहीं हो सकती, मतलब वो वस्तु है जिहड़ी वो स्थाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू स्टार कर लो, ठीक है जी। इस तो बिना इस स्टेज दे विच जिहड़ी इन्फेंसी स्टेज है, इस स्टेज दे विच बच्चे दे विच कॉज ते इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, कारण की है किसी चीज़ का ते प्रभाव की होगा उहदे बारे भी थोड़ा, ठीक है, बहुता नहीं, हजे प्रैक्टिकल नहीं होया, हजे लॉजिक नहीं आया, पर बेसिक लैस जिहड़ियां चीज़ां हैगियां कारण की है उहदा थोड़ा जिहा नतीजा की निकल सकदा उहदे बारे च बेसिक, ठीक है, बहुत इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिंदा, शुरुआत कर दिंदा। ते मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थिंकिंग, ठीक है, थॉट बच्चे च इस स्टेज दे विच शुरू हो जाते हैं, थॉट बच्चे दे विच इस स्टेज दे विच होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि असी क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस, जे मैं ये सोचना शुरू करता कि कोई चीज़ स्थाई है तो मतलब मैं सोच रही हाँ, ठीक है, एक बच्चे ने सोचना शुरू करता तो यदा मतलब फर्स्ट स्टेज दे विच ही बच्चे दे विच की आ थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज दे विच बच्चा ज़्यादा ट्रायल एंड एरर, ठीक है, ट्रायल ते एरर, गलतियां करदा, सुधार करदा, बार बार जतन, ठीक है, गलतियां ते जतन, गलती ते जतन दे राही सिखदा। थॉर्नडाइक दी थ्योरी शायद तुसी पढ़ी होवे तां कि बार बार कोई गलतियां करूगा, उन्हां गलतियां दे विच सुधार करूगा, खुद एक्सप्लोर करूगा तो एक बच्चा लर्न करूगा, ठीक है जी। तो यह हैगी आ जिहड़ी फर्स्ट इन्फेंसी स्टेज, ਇਹਦੇ बारे ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜੇ ने थॉट ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ऑलरेडी कर चुके हैं। ਜਿਹੜਾ एरिक्सन ਸੀਗਾ, एरिक्सन, ठीक है, एरिक्सन आ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ भी साइकोसोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी, मनोसमाजिक, ठीक है, विकास का मनोसमाजिक सिद्धांत किहने दिता सी? एरिक्सन ने। उन्हें इस स्टेज नूं की कहा? इन्फेंसी स्टेज नूं इन्हें एरिक्सन ने भी टोटल आ जिहड़ियां 8 स्टेजां पूरे लाइफ स्पैन एक बच्चे दे इन्फेंसी पीरियड तो लैके डैथ तक जिहड़ियां हैगियां 8 स्टेजां दा जिक्र कीता। तां जिहड़ी इहदी एरिक्सन दी स्टेज हैगी आ ट्रस्ट वर्सिस मिसट्रस्ट, पहली स्टेज ही, ठीक है, ट्रस्ट वर्सिस मिसट्रस्ट ओदी की आ किहड़ी स्टेज दे विच हुंदी आ? इन्फेंसी च। मतलब की आ कि एक बच्चे दे विच विश्वास बनाम अविश्वास दी भावना हैगी आ जिहड़ी ओदी इन्फेंसी काल दे विच विकसित हुंदी आ। की मतलब आ कि मैं ये कहां एक बच्चा ओदी जो भी टेक केयर करूगा, बेशक ओदी मदर आ, ठीक है, जां कोई केयर टेकर ओदे वास्ते रखा गया, कोई नैनी रखी गई है, एक बच्चे नूं ओदे नाल अटैचमेंट हो जाती है। वो हर एक एक्टिविटी लई उस परसन दे उपर, खास करके जे असीं गल करिए अपनी मदर दे उपर डिपेंड हुंदा। किसी रीजन करके जे किते उन्होंने अपनी मदर तो इन्फेंसी, ठीक है, शुरुआती 0 तो 2 साल, बर्थ तो 2 साल के बिटवीन जे एक बच्चे नूं अपनी माँ तो किसी तरीके नाल दूरी का सामना करना पै जे, आपदे केयर टेकर तो उन्होंने दूर होना पै जे, तो उहदे विच किहड़ी भावना विकसित हो जाती है? अविश्वास की भावना, ठीक है जी। तो जे उन्होंने अपनी मदर तो प्रॉपर प्यार मिल रहा, हर एक चीज़ प्रॉपर गुड चल रही है, मदर उहदे नाल रहिंदी, उहदी पूरी टेक केयर हो रही है 2 साल तक, तो उहदे विच किहड़ी भावना पैदा होगी? विश्वास की, ठीक है जी। तो इत्थे सिंपल ये क्वेश्चन बनता, ये पूछ सकते हैं कि एरिक्सन दी थ्योरी के अकॉर्डिंग जिहड़ा हैगा इन्फेंसी काल दे विच किहड़ी स्टेज, एरिक्सन दी किहड़ी स्टेज इन्फेंसी काल दे नाल संबंधित रखदी है? तां ट्रस्ट वर्सिस मिसट्रस्ट, क्योंकि इहदा टाइम पीरियड भी बच्चे दे बर्थ तो लैके 1.5 ईयर और 2 ईयर्स तक मन्निया जाता है, ठीक है जी। उस तो बाद जे असीं फ्राइड की गल करते हैं, तो फ्राइड ने आ जिहड़ा इस स्टेज नूं इन्फेंसी स्टेज नूं की आख्या? फ्राइड, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने जिहड़ी थ्योरी दित्ती वो हैगी आ साइको सैक्शुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो साइको सैक्शुअल थ्योरी है, थ्योरियां के नाम तुहाडे तो होप ना पूछे जान, ठीक है, पर स्टेज पूछी जा सकती है। तो फ्राइड ने हैगा जिहड़ा पहली स्टेज नूं देखो, फ्राइड ने भी टोटल 5 स्टेजां दित्तियां, ठीक है,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਲ ਸਟੇਜ, ਮੌਖਿਕ ਸਟੇਜ, ठीक है, मौखिक लैवल जिहदे विच बच्चा बर्थ तो लैके 1 साल का पीरियड आउंदा। देखो फ्राइड ने की किया, फ्राइड ने ना एक लिबडो वर्ड यूज किया अपनी थ्योरियां दे विच, लिबडो, ठीक है। लिबडो की आ आनंद प्राप्त करन दी, संतुष्टि प्राप्त करना जिहड़ा हैगा वो लिबडो आ अकॉर्डिंग टू फ्राइड, ठीक है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बचपन तो ही ना एक संतुष्टि आनंद भालते हैं अपनी जिंदगी दे विच, ठीक है। तो एक बच्चा हैगा जिहड़ा इन्फेंसी काल दे विच किहड़ियां स्टेजेस दे विचों लंघदा होया किवें किहड़े तरीके नाल लिबडो प्राप्त करदा, आनंद प्राप्त करदा। तो उन्हें कहा कि बर्थ तो लैके 1 साल तक जिहड़ा बच्चा हैगा वो औरल स्टेजेस, औरल किवें आ कि एक बच्चा पहलां बोतल नूं सक कर रहा हुंदा, मदर तो फीड लै रहा हुंदा, फिर बोतल नूं सक करदा तो उन्होंने चुंगन की आदत पै जाती है, सकिंग की आदत पै जाती है। तुसीं नोट किया होगा 1 साल तक बच्चा कदे हत्थ का अंगूठा कदे पैर का अंगूठा मूँह दे विच पा के जां खिडौणे नूं भी मूँह दे विच पा के सक करदा। इहदा मतलब वो सक क्यों करदा, क्योंकि वो लिबडो हासिल कर रहा, एक संतुष्टि प्राप्त कर रहा, ठीक है जी। तो इहदी पहली स्टेज हैगी आ जिहड़ी औरल स्टेज, वो किहदे च आऊगी, इन्फेंसी दे विच। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਸਟੇਜ, ਫਰਾइड ਦੀ ਗੁਦਾ ਅਵਸਥਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਨਾ ਉਹ 2 ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ। मतलब ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ, मतलब ਪ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ पार्ट रहूगा तो थोड़ा जिहा हैगा जिहड़ा इन्फेंसी दे विच रहूगा। तो नाल दे विच की है कि एक बच्चा नाल दे राही की है बच्चा अपने जिवें आपां कहिए स्टूल नूं, अपनी पोटी नूं जिहड़ा हैगा वो कंट्रोल करन लग जांदा, अपने वॉशरूम नूं कंट्रोल करन लग जांदा ते उस तरीके दे नाल वो आनंद हासिल करदा, लिबडो हासिल करदा। ते की हैगी एक बच्चे दी अनाल स्टेज, ठीक है। पर जिहड़ी प्रॉपर स्टेज साडे इन्फेंसी पीरियड दे विच आउंदी है वो किहड़ी हैगी आ, औरल स्टेज, ठीक है जी। जे असी इन्फेंसी काल दे विच इन्फेंसी पीरियड दे विच बच्चे दियां मोटर एक्टिविटीज़ की गल करदे हां, गतियात्मक किहड़ियां एक्टिविटीज़ सीख लैंदा, तां बेसिकली जिहड़ियां मोटर एक्टिविटीज़ आ वो 2 तरीके दियां हुंदियां, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है जी। जिन्होंने असी फिजिकल डिवेलपमेंट दे विच पूरा डीप पढ़ांगे। इत्थे मैं दस रही हाँ किहड़ियां मोटर एक्टिविटीज़ बच्चा फर्स्ट स्टेज दे विच सीख लैंदा, बैठना, रिड़ना, ठीक है, तुरना, सारे नाल खड़ा होना, भजना, वो पहली स्टेज दे विच सीख लैंदा। इन्नियां बेसिक एक्टिविटीज़ ते नाल ही फर्स्ट स्टेज दे विच इन्फेंसी दे विच हैगा जिहड़ा बच्चा किसी एक हत्थ दे नाल चीज़ नूं फड़ना, ठीक है, 2 हत्थां दे नाल चीज़ नूं फड़ना ते इंडेक्स फिंगर ते अंगूठे दे राही किसी चीज़ नूं फड़ना भी आ जिहड़ा वो शुरू कर दिंदा, जिवें मैं पेन फड़िया होया, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेज दे विच बच्चा शुरू कर दिंदा। जे असीं उहदी लैंगुएज डिवेलपमेंट दी इन्फेंसी दे विच गल करदे हां तां बच्चा जिहड़ा हैगा 1 साल तक दा जिहड़ा बच्चा हैगा ओह लगभग 1 तो लैके 3 शब्द बोल सकदा, 1 तो 3 शब्दां दा भंडार उहदे कोल इस स्टेज दे विच हो सकदा पहली दे विच, ठीक है। प्रॉपर देखो इन्फेंसी पीरियड दे विच बोलना प्रॉपर शुरू नहीं करता, उहदे कोल शब्द भंडार होना जरूर शुरू हो जाता। प्रॉपर बोलना दूजी स्टेज दे विच शुरू करूगा, 2 साल तो बाद शुरू करूगा। बहुत वड्डे लैवल ते जिहड़ा भाषा का विकास, लिंगुइस्टिक बनन तक का विकास, साडे वांगू बोलन तक का जिहड़ा विकास हैगा बच्चा प्री प्राइमरी स्टेज दे विच करूगा, सॉरी प्री चाइल्डहुड स्टेज दे विच करूगा। पर इत्थे भाषा नूं सिखना, सुनना, समझना शुरू कर दिंदा, ठीक है। भाषा नूं सुनना ते समझना हैगा जिहड़ा इत्थे ओह शुरू कर दिंदा फर्स्ट स्टेज दे विच, ठीक है। तो 1 साल तक दे बच्चे कोल 1 तो 3 शब्द हो सकदे आ ते जिहड़ा 1 साल तो जे आपां इह कहिए 10 तो लैके 14 मंथ दे बिटवीन, कोई बच्चा 10 मंथ दे विच ते कोई 14 मंथ तक, ठीक है, अपना पहला शब्द आ जिहड़ा बच्चा बोलूगा। क्लीयर, इत्थे इन्हां दोनों चीज़ों च ना उलझो। 10 तो 14 का मतलब हैगा सारे बच्चों के लिए, ये सारियां एवरेज ने। कोई बच्चा 10 दे विच अपना पहला शब्द बोलूगा, कोई 11वें महीने च बोल सकता, कोई 12वें च, कोई 13वें च, कोई 14वें च पहला शब्द, ठीक है। जे कोई बच्चा
10वें महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੈਂਸੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਦਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟੀਚਰ ਆਫ ਚਾਈਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਘਰ। ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਫਸਟ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੈਂਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਸਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਜਾਂ 4 ਇਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤਿਉੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਵੀਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਆ ਯੈਸ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ, ਪਿਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਾ 2.5-3 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਆ ਫॉर ਯੂਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਬਚਪਨ ਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਮਈ ਹੁੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ, ਸਵੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡੂਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਟੇਜ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ ਇਹ। ਪਲੇਵੇ ਸਟੇਜ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਲੇਵੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਖੇਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਏ ਸਟੇਜ, ਟੋਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦਾ? ਪਲੇ ਕਰਕੇ, ਖੇਡ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਏ ਸਟੇਜ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ
क्यूरियोसिटी हुंदी है लर्न करन दी, तो इस करके उन्होंने क्वेश्चनिंग एज आखदे। जिन्ने अखर मैं बोल रही हूँ सारे क्वेश्चन ने, ठीक है जी। मैं क्या क्यूरियोसिटी है दा मतलब की है इस स्टेज दे विच बच्चे च क्यूरियोसिटी बहुत हुंदी है लर्न करन दी, ठीक है, सीखना चाहता हो, इस करके इस स्टेज दे विच बच्चा क्यूरीअस आ। टॉय स्टेज आ, टॉयज नूं तोड़ के एक्सपैरीमेंट करके, ठीक है, बच्चा सीखदा इस स्टेज च। प्ले स्टेज आ, खेड के सीखदा। इस तो पहला मैं एक वर्ड यूज किया सी इंडिपेंडेंट है, इहदा मतलब की आ बच्चा सुतंत्र रह के सीखदा। इसे करके ना असीं बच्चों नूं मेन स्ट्रीम स्कूलों के विच नहीं भेजते, प्लेवे क्रच स्कूलों के विच भेजते हैं, ताकि उत्थे बच्चा सुतंत्र रह के खुद खेड के खुद एक्टिविटीज़ करके लर्न करे इस स्टेज के लिए, ठीक है जी। टॉय स्टेज ते प्री गैंग स्टेज। प्री गैंग स्टेज असीं इहनूं क्यों आखदे आ, क्योंकि जो बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल दे विच जाऊगा अपनी एक गैंग बना लूगा, दोस्त मित्र बना लूगा। इस स्टेज दे विच हजे वो इन्ना वड्डा इन्ने ज़्यादा रिश्ते बनाउण वाला नहीं बनया, तो इस करके हैगा जिहड़ा इहनूं असीं प्री गैंग स्टेज भी आखदे आ, ठीक है। जे असीं गल करिए ना जिहड़ी ये वाली स्टेज हैगी आ बच्चे नूं मेन स्ट्रीम स्कूल दे विच जाण तो तैयार करन तो पहलां दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आ एजुकेशनल परसपैक्टिव तो, ठीक है। जे असीं एजुकेशनल जां एकेडैमिक वे तो एक बच्चे नूं देखदे आ, अकादमिक पक्ष तो विद्यक पक्ष तो ग्रोथ करन दे हिसाब नाल देखिए तो जिहड़ी ये स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इत्थों ही बच्चे दियां रूट्स बननियां शुरू हुंदियां मेन स्ट्रीम स्कूल दे लई, ठीक है। तुसीं उहदियां रूट्स तैयार करोगे एज एनटीटी टीचर कि वो पहली क्लास दे विच जदों जाऊगा तो उहनूं बहुत कुछ आ जिहड़ा वो प्रैक्टिकली मैंटली हर तरीके दे नाल आउंदा होऊगा। क्लीयर। उस तो बाद मैं प्याजे की गल की पहला भी है ना, प्याजे ने जी थ्योरी दी सी कोग्निटिव डिवेलपमेंट की, तो प्याजे ने जी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है इहनूं की नाम दिता, प्री कन्वेंशनल स्टेज। पंजाबी दे विच पूर्व कार्यात्मक अवस्था, ठीक है। उम्र की है 2 तो लैके 7 साल तक, ठीक है। ਇਹਦਾ 1 साल वध गया। असी वैसे इन्फेंसी दे लेटर चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड दे 6 साल तक का समा लैंदे आ, पर ज़्यादा 6 साल तक दे बच्चे 7 साल दे बच्चे तक एक्टिविटीज़ सेम रहिंदियां। तां जिहड़ा प्याजे हैगा उन्हें इस स्टेज नूं की किया, प्री कन्वेंशनल पूर्व कार्यात्मक जां सॉरी प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल नहीं प्री ऑपरेशनल, ठीक है, पूर्व कार्यात्मक। की रीजन आ इस स्टेज दे विच बच्चे दे विच लॉजिक नहीं बनिया, इहनूं ध्यान च रखियो, लॉजिक नहीं आ, ठीक है। लॉजिकलैस स्टेज आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ कि इस स्टेज दे विच बच्चे दे विच लॉजिक नहीं हुंदा। सोचना बच्चा किहड़ी स्टेज दे विच शुरू कर दिंदा, इहनूं कॉमेंट बॉक्स दे विच दसो, ठीक है, किहड़ी स्टेज दे विच सोचूगा ते लॉजिक बच्चे च किहड़ी स्टेज विच आ सकदा, ठीक है। दूजी स्टेज दे विच लॉजिक हुंदा जां नहीं। जिहड़ी दूजी स्टेज है इहदे विच बच्चे दे विच लॉजिक नहीं हुंदा, लॉजिक लैस हुंदा, ठीक है जी। इहदे च बच्चा ईगोसैंट्रिक हुंदा, ठीक है। जिहड़ी ए स्टेज है इहदे विच भी बच्चा ईगोसैंट्रिक हुंदा, हंकार केंद्रित हुंदा। असीं ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ अपने ही फीलिंग नूं सही समझूगा, किसी होर दे परसपैक्टिव नूं नहीं मन्नूगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्याजे। ते एनीमिज्म हुंदा, एनीमिज्म पता की हुंदा, जिवें निर्जीव चीज़ां 'च जान समझना, ठीक है। इस स्टेज दे विच बच्चा निर्जीव चीज़ां दे विच जान समझण लग जांदा। तुसीं देखिया होना 2 तो 6 साल दियां कुड़ियां जदों गुड्डी दे नाल खेड रहीआं हुंदियां तो गुड्डी नूं बिल्कुल उस तरीके नाल केयर करदियां, नवाउंदियां धवाउंदियां जिवें एक मदर एक बच्चे की केयर कर रही हुंदी है। क्यों? क्योंकि उन्हां नूं ये लगदा कि ये भी जिहड़ी गुड्डी हैगी उहदे च भी जान आ, ठीक है। तो यह हैगा एनीमिज्म। ते किहदी निशानी है कि मतलब बच्चे दे विच लॉजिक नहीं आ, वो लॉजिकलैस आ, ठीक है, तर्क नहीं आ, तर्कहीन अवस्था है। प्याजे के अकॉर्डिंग आ जिहड़ा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज दे विच बच्चे दे विच एनीमिज्म हुंदा, ईगोसैंट्रिक हुंदा बच्चा। इस तो बिना इस स्टेज दे विच बच्चा क्लासीफिकेशन नहीं कर सकदा, वर्गीकरण नहीं कर सकदा, किसी चीज़ां नूं तोड़ नहीं सकदा, किहड़ी चीज़ किहड़ी कैटागरी च आउंदी है, किहड़ियां सब्जियां किहड़ी कैटागरी च आउंदियां, उन्हां नूं चंगी तरह हजे नहीं समझ सकदा अकॉर्डिंग टू प्याजे, ठीक है जी। कंजरवेशन नहीं कर सकदा,
ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੌਲੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸੇਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਿਵਰਸਿਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਪਲਟਾ ਖਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ठीक है। पलटा खान की योग्यता मतलब वो A B C D पढ़ सकता, D C B A नहीं पढ़ सकता, ठीक है, पिछे नहीं जा सकता, ना ही वो रिलेशन ट्री समझ सकता। जिवें आप दो बच्चे होण, आप दोनों नूं कहिए कि एक मैं आ, ठीक है, एक होर बच्चा, ते कोई बच्चे नूं ये कहा जाए कि मैं आ जिहड़ी उस बच्चे की भैन आ, ठीक है, तब वो बच्चा कहूगा हाँ ये मेरी भैन आ। पर जे आप उस बच्चे नूं आखीए भरा, ठीक है, जे मैं उस बच्चे तो पूछिए तू एदा भरा, ठीक है, इत्थे समझा दिन्नी है, ये दो बच्चे ने ए ते बी, ठीक है, आप इस बच्चे नूं कहा कि तू एदा की हैगा ब्रदर, वो कहूगा यस ये मैं एदा ब्रदर हाँ। पर जे आप ये आ जिहड़ी सिस्टर आ, सॉरी ये ब्रदर आ, बी आ जिहड़ी वो सिस्टर आ, ठीक है, तो आप ये कहा कि तू ना ए जिहड़ा हैगा तू बी दा ब्रदर आ, तो वह कहूगा हाँ मैं ब्रदर हाँ। पर जे आप तो पूछिए कि बी तेरी सिस्टर आ, कहूगा नहीं। मतलब रिलेशनस का भी हजे वो पलटा नहीं खा सकता, जिन्नी चीज़ असीं उहनूं दसी आ उन्नी चीज़ नूं ही समझूगा, ठीक है जी। तो इहदा मतलब ये होया कि इस स्टेज दे विच बच्चे दे विच जिहड़ा हैगा लॉजिक नहीं हुंदा। एरिक्सन की जे असीं गल करदे हां तां एरिक्सन की थ्योरी दियां दो स्टेजां इहदे च आउणगीआं, ठीक है। एक हैगी आ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जिहड़ी हैगी आ टाइम पीरियड 2 तो लैके 3 साल तक, ठीक है। ऑटोनॉमी की आ खुद मुख्तियार, इहदे च बच्चा खुद मुख्तियार हो जाता है ना, खुद एक्टिविटीज़ करन दी कोशिश करन लग जाता। वर्सेस शर्म ते शक, ठीक है, खुद मुख्तियारी करदा आज़ाद होके, क्योंकि इस बच्चे नूं तुरना आ गया तो खुद किसी जगह के उपर पहुँचण की कोशिश करूगा। जे तो उहदे विच सफल हो जाता तो उहदे च जिहड़ा हैगा ऑटोनॉमी आ जूगी कि हाँ मैं कर सकदा। जे उहदे च असफल हुंदा उस एक्टिविटीज़ दे विच तां उहदे च की आ जूगा शर्म ते डाउट। इहदे च दूजी स्टेज जिहड़ी हैगी आ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव हुंदा पहल कदमी वर्सेस गुनाह, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा बच्चा पहल कदमी भी करन लग जाता 3 तो 6 साल तक। 3 तो 6 साल तक बच्चा इस स्टेज दे विच हुंदा, वो खुद किसी काम नूं करन लई कोशिश करता, खास करके बहुत ज़्यादा सवालों के लिए इनिशिएट करता। और की इहो जिहे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जे असीं उहनूं प्रॉपर जवाब दिंदे आ, उहदी संतुष्टि हुंदी आ तो इनिशिएटिव वल जाऊगा, उहदे च क्यूरियोसिटी होगी होर चीज़ां लर्न करन दी। जे नहीं तो फिर उहनूं अपने आप दे विच, जे मैं ये कहता नहीं मैनूं इहदा तेरा सवाल नहीं पता, तू बोलदा बहुत आ, लॉट ऑफ है ना, जिवें असीं अक के बच्चों नूं पैंदे आ, तो इस तरीके नाल बच्चों दे विच आ जिहड़ा गुनाह की भावना भी भर जाती है। तो ये जिहड़ियां दोनों स्टेजां एरिक्सन दियां हैगियां किहदे च हैगियां अर्ली चाइल्डहुड दे विच, ठीक है। जे असीं फ्राइड की गल करते हैं तो फ्राइड की थ्योरी के अकॉर्डिंग जिहड़ी ये स्टेज हैगी आ ये पैलिक स्टेज आ, 3 तो लैके 6 साल तक बच्चा पैलिक स्टेज दे विच हुंदा। इहदे विच बच्चों दे विच हैगी आ जिहड़ी ऑपोजिट सैक्स के प्रति जिहड़ी हैगी आ ओह खिच हुंदी आ। बच्चा अपनी जे मुंडा तो अपनी मदर नूं ज़्यादा प्यार करूगा, जे लड़की है तो आपदे फादर नूं ज़्यादा प्यार करूगी, ठीक है जी। इहदे च लड़कियां दे विच इस स्टेज दे विच ये फीलिंग जिहड़ी मैं कही ऑपोजिट सैक्स लई प्यार, तो लड़कियां दे विच एडिपस नां दी फीलिंग ते लड़कियां दे विच इलैक्ट्रा नां दी फीलिंग। इलैक्ट्रा, ठीक है जी, इलैक्ट्रा नां दी फीलिंग आ जिहड़ी इस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज दे विच विकसित हो सकती है। मतलब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज दे विच बच्चा ज़्यादा ऑपोजिट सैक्स के प्रति खिच महसूस करता, ठीक है। इस स्टेज दे विच जे असीं लैंगुएज की गल करते हैं तो लैंगुएज डिवेलपमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आ। 2 तो लैके 6 या 7 साल तक बच्चा पूरा लिंगुइस्टिक हो जाता, पूरा भाषा नूं जिहड़ा
ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਈ ਮੋਟਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਖੁਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਗਨੈਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡੋਮੇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੋਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਗਨੈਟਿਵ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ Telegram ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।